Good morning, dear students. In the previous class, we had started with some of the morphological characters of the cockroach. We said that cockroach is the most common cockroach, that is Periplaneta americana. These cockroaches are divided into three parts: head, thorax and the abdomen part. We also said that the cockroach on its dorsal as well as ventral surface will be lined up or will have the presence of a chitinous exoskeleton. An exoskeleton that is made up of chitin. And this chitinous exoskeleton will be found in the form of, that is dorsally it will be known as the tergites, ventrally it will be known as sternites, and laterally it will be known as pleurites. The whole of the exoskeleton is not continuous, instead it is in the form of hardened plates, and these plate-like structures will be connected to each other by a flexible membrane known as articular membrane or arthrodial membrane. मतलब जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, इंस्टेड वो एक प्लेट्स के फॉर्म में होता है और हर एक ये जो प्लेट है वो दूसरी प्लेट से कनेक्टेड होती है बाय फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, जिसे हमने कहा था आर्टिकुलर और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. तो अब हम आगे और मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा दैट इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. सो लेट अस हैव अ लुक दैट व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन हेड, in thorax and in the abdomen. तो सबसे पहले हम बात करते हैं about the head of the cockroach. So head of the cockroach, it is situated at the anterior most end and it is formed by the fusion of 6 segments. 6 ऐसे segments हैं जो connect होके एक head form करते हैं. So head, it is triangular in its shape. Head is of triangular shape. It is located on anterior end and it is formed by fusion of 6 segments. right? तो 3 चीजें हमें हेड के बारे में याद करनी है. दैट हेड जो होता है, कॉकरोच का हेड वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और वो बॉडी के सबसे एंटीरियर एंड पे लोकेटेड होता है. और ये जो हेड है इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूज्ड 6 सेगमेंट्स, मतलब 6 सेगमेंट्स हैं, उनके फ्यूज होने से एक हेड फॉर्म हुआ है. This head will be situated to the right angle to the longitudinal axis of the body. So it is situated at right angle to the longitudinal axis of the body. तो बॉडी की जो एक्सेस है उस पे लॉन्जिट्यूडनल मतलब राइट एंगल पे अरेंज्ड होता है हेड, क्योंकि कॉकरोचेस में हेड जो है वो इस तरफ होता है एंड देन आफ्टर द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी लाइक दिस. तो हेड जो है दैट इज सिचुएटेड एट द राइट एंगल टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी. हाउएवर यू डोंट हैव टू ड्रॉ एनी सच डायग्राम. ओके, सो नेक्स्ट फर्दर वी टॉक अबाउट दैट अब जो हेड है तो हेड में कौन से रीजन्स होते हैं, कौन से पार्ट्स लोकेटेड होते हैं. तो हेड जो है उसमें हेड विल बी कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी बाय अ प्रेजेंस ऑफ अ फ्लेक्सिबल नेक. इसलिए इनका जो हेड है वो हर एक डायरेक्शन में मोटिलिटी शो करता है. सो इट द हेड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ फ्लेक्सिबल नेक. सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ फ्लेक्सिबल neck. So head will be connected to the rest of the body by a flexible neck. ये flexible neck जो है वो thorax के पहले segment का extension है. It is an extension of prothorax, जिससे head form होता है, जिससे neck form होता है. और neck flexible होने की वजह से cockroaches can move their head in all the direction at the same time. So they have a flexible neck. Another thing is that there is presence of a compound eyes. So pair of compound eyes is located in the head. So head consists of a pair of
कंपाउंड आईज। अब कंपाउंड आईज जो होती हैं, एक्चुअली दीज आईज आर मेड अप ऑफ मल्टीपल स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड ओमेटीरिया, and each ommatidia has an ability to take a picture of whatever it is observing. So multiple image like a picture will be represented in their eyes, and such a vision is called mosaic vision, right? What do we observe? हम जिस तरफ देखते हैं, हम एक ही पूरा एक कंटिन्यूस स्क्रीन में हम उसे देखते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, टेक्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्ट्स, एंड दीज ऑल मल्टीपल पार्ट्स दे विल बी मेकिंग अ फ्यूज्ड इमेज, जिसे मोजैक विजन कहते हैं। तो कंपाउंड आईज जो होती है वो थोड़ी स्पेशलाइज्ड टाइप की कॉम्प्लेक्स आईज प्रेजेंट होती है। सो अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज इज प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट फॉर ऑब्वियसली रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन। अलोंग विद कंपाउंड आईज there is presence of a sensory structure called antenna that is located also in the head part. So there is presence of antenna emerging from membranous socket. और ये जो एंटीना होता है सेंसरी ऑर्गन है, इट इज अ सेंसरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक तो उनके हेड पार्ट में क्या लोकेटेड होता है, आईज होती है, और आईज के अलावा दे हैव प्रेजेंस ऑफ सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ आईज। आईज के आगे ही थोड़ा एक गड्ढे जैसा एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस सॉकेट में से एंटीना जो है वो इमर्ज होता है। एंटीना आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स and they are sensory in its function, so they will be identifying any fluctuations occurring on the ground. So any tactile movement or any vibrations can be detected by these antenna. तो antenna एक sensory structure present है, eyes present है, and third there is presence of mouth parts. There is presence of the mouth parts. तो mouth parts में आ जाता है लेब्रम, a pair of labrum, labium, mandible and maxillae. ओके, तो माउथ पार्ट्स जो होते हैं उनमें इनके पास लेब्रम है, दैट इज द अपर लिप, लेबियम है, दैट इज द लोअर लिप, मैंडिबल्स एंड मैक्सिले आर द जॉ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनके पास जॉज नहीं होती, but like we can say that they have a mouth which is having mandibles, maxillae, upper lip, labrum and labium. So such mouth parts are present, and these mouth parts are biting and chewing type of mouth parts. तो ये जो होते हैं वो फूड को बाइट और कंटिन्यूअसली च्यू करने के लिए इनके पास प्रेजेंस है माउथ पार्ट्स का। तो जब हम हेड की बात करते हैं तो हेड में आ जाता है कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेनस सॉकेट्स में से इमर्ज होने वाले एंटीना होते हैं, और थर्ड चीज जो होती है वो होती है इनके पास माउथ पार्ट्स। इन माउथ पार्ट्स के अलावा दे ऑल्सो हैव अ स्मॉल टंग लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं हाइपोफेरिंग्स। स्मॉल टंग लाइक स्ट्रक्चर, हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स इज प्रेजेंट। तो एक टंग जैसा स्ट्रक्चर जिसे हाइपोफेरिंग्स कहा जाता है, ये हाइपोफेरिंग्स भी इनके पास प्रेजेंट होता है। तो ये हमने जो भी बात की, दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हेड ऑफ द कॉकरोच। Now we saw that cockroach also consists of the second part, that is called the thorax part. तो हम second की बात करते हैं, thorax. Now the thorax region of the cockroach, that is divided into three parts: prothorax, mesothorax and metathorax. So it is divided into prothorax, mesothorax and metathorax. And these thoracic segments will be connected to the head through the neck-like structure which develops by the extension of the prothorax. So, a small extension
a small extension from prothorax forms the neck of the cockroach. तो प्रोथोरैक्स में से आगे की तरफ बढ़ने वाला एक छोटा एक्सटेंशन डेवलप होता है जो एक्चुअली नेक का पार्ट बनता है, इसीलिए हेड विल बी कनेक्टेड टू विच पार्ट? प्रोथोरैक्स. और उसके बाद आता है मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स. हर एक थोरैसिक सेगमेंट में से अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स विल डेवलप. So from each thoracic segment, a pair of walking legs will develop. तो हर एक थोरैसिक सेगमेंट में से वॉकिंग लेग्स डेवलप होते हैं. मोर ओवर ये थोरैसिक सेगमेंट्स में डॉर्सल साइड पे विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो अब हम आगे विंग्स की बात करते हैं. दैट विच टाइप ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ कॉकरोच. So as we said that the thorax will be consisting of prothorax, mesothorax and metathorax. The prothorax will have a small extension that develops the neck, and so neck will be connected to the head part. The mesothorax and the metathorax as well as the prothorax, all of them will be developing a pair of walking legs. So there will be 3 pairs of walking legs that are present in the cockroach. The next thing that is present is the presence of the wings. So wings will be present from both mesothorax and metathorax. So the first pair of wings develops from mesothorax. तो पहला जो विंग पेयर है वो मेसोथोरैक्स में से डेवलप होता है, और ये जो विंग्स होते हैं वो डार्क और लेदरी होते हैं एज वेल एज दे आर ओपैक. सो दीज विंग्स आर डार्क, लेदरी एंड ओपैक. तो ये विंग्स की कैरेक्टरिस्टिक है एंड दे आर नोन एज टेगमिना. कॉकरोच में 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होती है. पहली जो पेयर है वो डेवलप होती है मेसोथोरैक्स में से, और दूसरी पेयर जो है वो मेटाथोरैक्स में से डेवलप होती है. तो जो मेसोथोरैक्स में से जो विंग्स डेवलप होते हैं वो विंग्स एकदम डार्क और लेदरी होते हैं, और ऐसे विंग्स को कहा जाता है टेगमिना. अनदर पेयर ऑफ विंग्स develop from मेटाथोरैक्स. मतलब प्रोथोरैक्स में से कोई भी विंग्स डेवलप नहीं होते. प्रोथोरैक्स में से सिर्फ वॉकिंग लेग्स हैं, और वो भी वेंट्रल साइड पे, जबकि मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में से विंग्स डेवलप होते हैं ऑन द डॉर्सल साइड और लेग्स डेवलप होते हैं ऑन द वेंट्रल साइड. तो ये जो मेटाथोरैक्स में से डेवलप होने वाली सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स है ये ट्रांसपेरेंट होती है. इट इज मेनली ट्रांसपेरेंट एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द फ्लाइट. मतलब उड़ने के लिए जो मेनली काम आती है, दैट इज देयर ट्रांसपेरेंट विंग. तो ये हमने जो बात की that was all about the thorax. Now we talk about the third region in the cockroach, that is the abdomen. So the third thing, that is abdomen is present. तो कॉकरोच में हेड की बात की, हमने थोरैक्स की बात की, और अब हम बात कर रहे हैं अबाउट एब्डोमेन. तो abdomen of the cockroach that consists of 10 segments, whether it is male cockroach or it is female cockroach. So it consists of 10 segments in male and
फीमेल, मतलब मेल कॉकरोच हो या फीमेल कॉकरोच हो, पर कितने सेगमेंट्स होते हैं 10। थोरैक्स के कितने सेगमेंट्स हैं? 3 ही है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। और हेड जो है इट इज फॉर्म्ड ऑफ 6 सेगमेंट्स, बट वो सारे फ्यूज हो गए हैं। तो हेड के 6 सेगमेंट्स फ्यूज हो गए हैं, थोरैक्स के 3 सेगमेंट्स और एब्डोमेन के कितने सेगमेंट? 10 सेगमेंट्स होते हैं, वेदर इट इज अ मेल कॉकरोच और इट इज अ फीमेल कॉकरोच। Now abdomen in the case of females will be having the female reproductive system, and in the case of males will be having the male reproductive system. So here there are certain terminologies that we are going to discuss, though we are going to discuss them in detail in reproductive system of cockroach, but right now we are going to just mention the names that what is present in the region of the abdomen. तो abdomen जो है, अगर हम females की बात करें, in females the 7th sternum is boat shaped and covers 8th and 9th sternum. मतलब sternal side, turga was the dorsal side and sterna was the ventral side. तो 9th मतलब 7th जो स्टर्नम है वो पूरा 8 और 9 स्टर्नम को कवर करता है, एनक्लोज करता है, एंड दिस ऑल 7, 8 एंड 9 स्टर्ना टुगेदर they form female genital pouch, और you can say female genital chamber. क्या बनता है? 7th, 8th और 9th स्टर्ना, मतलब स्टर्नल साइड पे, राइट? डॉर्सल साइड होती है और वेंट्रल साइड होती है, तो ये जेनाइटल पाउच वेंट्रल साइड की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं स्टर्नल साइड पे प्रेजेंट है। तो 7th, 8th और 9th सेगमेंट कलेक्टिवली एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहा जाता है फीमेल जेनाइटल पाउच या फीमेल जेनाइटल चैम्बर, एंड दिस फीमेल जेनाइटल चैम्बर विल बी एसोसिएटेड विथ, it is associated with the structures like collateral glands. Another structure that is present is the spermatical pore, and the third structure that is associated, that is the female genital pore. मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। जब हम एब्डोमेन की बात करते हैं तो कॉकरोच के एब्डोमेन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होती है, मेल कॉकरोचेस में भी फीमेल में भी, पर सेगमेंट्स थोड़े अलग होते हैं। जब फीमेल कॉकरोचेस की बात करते हैं तो उनके एब्डोमेन के सेगमेंट नंबर 7, 8 और 9 वो भी अपनी वेंट्रल साइड पे, उनमें होता है प्रेजेंस ऑफ अ फीमेल जेनाइटल चैम्बर। तो ये फीमेल जेनाइटल चैम्बर जो है वो कुछ इस तरह का होता है जिसमें एक ओपनिंग होता है, that is known as the spermatical opening. इनके दोनों तरफ पे होते हैं collateral glands like this. You will be studying the diagram later on when we discuss the reproductive system. और यहाँ पे होता है female genital pore. ठीक है, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है that will be found in the abdomen of the females. In the case of abdomen of the males, in males segment 9 and 10 on the sternal side form male genital pouch. It is going to form the male genital pouch, and male genital pouch is associated, क्योंकि इनमें सिर्फ सेगमेंट नंबर 9 और 10 है, जबकि इनमें सेगमेंट नंबर 7, 8 और 9 में प्रेजेंट है। तो 9th और 10th सेगमेंट जो है दे आर एसोसिएटेड टू फॉर्म अ मेल जेनाइटल पाउच, और मेल जेनाइटल पाउच जो है उसमें इंक्लूड होता है द एनस, राइट? एक तो एनस का पोर होता है या तो एनाल पोर कहा जाता है। अदर देन दैट देयर इज अ मेल जेनाइटल पोर, मेल genital pore, and one more structure that they have is gonapophysis. So just like female जो
है जेनाइटल चैम्बर इज एसोसिएटेड विद कोलेट्रल ग्लैंड्स, परमेथिकल पोर और जेनाइटल पोर। सेम वे मेल्स में 9th और 10th सेगमेंट डॉर्सल और वेंट्रल दोनों तरफ पे आता है, एंड दैट इज हैविंग द ओपनिंग फॉर एनस, मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस। फीमेल्स आल्सो हैव एनस, पर वो 10th सेगमेंट में है, and this is about 7, 8 and 9 segment. Another thing that is common that is present exclusively in males is the presence of anal styles. So males have presence of anal style. Anal style अगर आप डायग्राम में देखोगे, you will be able to see that at the end of the cockroach there is an elevated like structure on both the sides. एक प्रोजेक्शन की तरह दिख रहा है, उसे कहा जाता है एनाल स्टाइल, जो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है. एंड बोथ मेल एंड फीमेल्स have presence of anal cerci in 10th सेगमेंट नंबर 10. एनाल सर्काई जो है वो एक सेंसरी स्ट्रक्चर है और एनाल सर्काई दोनों में प्रेजेंट होता है. दैट इज इसमें फोनो रिसेप्टर्स होते हैं जो साउंड को रिसेप्टिव कर सकते हैं, तो उसके लिए इनके पास एनाल सर्काई होता है जो एक सेंसरी स्ट्रक्चर है बोथ मेल्स और फीमेल्स में. तो थोरैक्स में याद रखना है कि हर एक थोरैसिक सेगमेंट में से वॉकिंग लेग्स डेवलप होते हैं. मिजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में से विंग्स डेवलप होते हैं. मिजोथोरैक्स के जो विंग्स होते हैं डार्क और लेदरी होते हैं जिन्हें टेगमिना कहा जाता है, और हिंड विंग्स जो होते हैं मतलब जो सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स हैं वो मेटाथोरैक्स में से डेवलप होते हैं और वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. एब्डोमेन 10 सेगमेंट का बना हुआ है बोथ मेल्स और फीमेल्स में. फीमेल्स में सेगमेंट नंबर 7, 8 और 9 मिलके बनता है फीमेल जेनाइटल पाउच, जिसके साथ एसोसिएटेड कोलेट्रल ग्लैंड्स होते हैं, स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं और जेनाइटल पोर्स होते हैं. ये सारे स्ट्रक्चर्स जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो आप देख पाओगे. इन मेल्स 9, 10, 10 सेगमेंट्स स्टर्ना एज वेल एज स्टर्गा दोनों तरफ पे मेल जेनाइटल पाउच डेवलप होता है, उसके साथ एसोसिएटेड होता है एनस, मेल जेनाइटल पोर और गोनेपोफाइसिस. मेल्स में प्रेजेंट होते हैं एनाल स्टाइल और फीमेल्स में और मेल्स में दोनों में प्रेजेंट होता है एनाल सर्काई. So that was about morphology of head, thorax and abdomen. In the next lecture we will begin with the anatomy. मतलब हम digestive system, circulatory system की बात करेंगे from the next lecture.